Hi everyone. Today we are going to discuss a very important poem, The Night of the Scorpion. It was written by the Indian Jewish poet, and he was one of the foremost post-colonial Indian poet named as Nassim Ezekiel. Dear friends, before going into the detailed discussion of the poem, how it has been structured and in what way it was composed and what is the message of the poem, let me introduce Nassim Ezekiel first. Nassim Ezekiel was an Indian Jewish poet, playwright, art critic, editor, and he was born on 16 December 1924 in Mumbai. He did his BA from Wilson College. Later on, he became an English teacher, and he basically, as a poet, he got name and fame, and he published his first collection of poetry, The Bad Day, in 1952, just after his marriage. Seeing his poetic talent, he was awarded the Sahitya Akademi Award in 1983, and later on in 1988 he was given the Padma Shri Award. His major works are Night of the Scorpion as a poem, The Doctor, The Case Study, The Philosophy, The Latter Day Psalms. It is a poetry collection that he has written. Soap, The Hill, The Patriot, The Professor, and he also wrote 3 plays. And his famous poetry that we are going to discuss today, it was published in 1965 in his poetry collection, The Exact Man. And the poem is entitled as The Night of the Scorpion. It is known as magnum opus of Nassim Ezekiel. You know, this is the most popular poem of Nassim Ezekiel that brought big name and fame to him, and he established himself as a poet in Indian writing in English or in English poetry. The Night of the Scorpion is a unique poem in the way it is also free of verse, written in 8 stanzas, and no stanza is rhymed. Some stanzas are of 3 lines, some are of 4, some are of 7, some of 8, 9, and the last one is of 3 lines only. He just recalls an incident of his childhood, most probably, as the critics say. And he just exactly show the relationship of a rural life, their beliefs, the tradition, the superstitions prevailed in that society. On the other way hand, the scientific research and the logics and the reasonings and the rationality shown by his father, but nothing works till the end. He basically discussed the tender situation of every Indian family, and it's a juxtaposition of moral in rural India, their beliefs, their faith. So let's start the poem. We will go through line by line. He says, I remember the night of my mother was stung by a scorpion.
he remembers a day of his life that he exactly remembered the day when his mother was stung by scorpion. Let me explain it in Hindi. वो कहते मुझे वो दिन ठीक ठीक याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट डाला था. 10 hours of study ran and driven him to crawl beneath the sack of rice. Actually, the day was fully raining. It was raining more than 10 hours. And the scorpion, however, would have been able to manage to escape from that rainy season and to enter into that house. और वो लगभग 10 घंटे की बारिश से किसी तरह से उनके घर के अंदर आ पहुंचा. Crawl beneath the sack of rice. चावल के बोरे के नीचे वो छुप गया. Parting with his poison flesh of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. और उस चावल के बोरे के नीचे छुपने से पहले वहां पर उसकी माँ कुछ काम कर रही होगी. उसके पैर के अंगूठे में उसने डंक मार दिया. He stings in the toe. He bites there and she starts crying. The family members of the house start searching, but they do not find him so easily because he was hidden under the sack of rice. चावल के बोरे के अंदर छुपा हुआ था. He risked the rain again. और वहां से उसको मम्मी को काटने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा फिर भी, क्योंकि बारिश लगातार आ रही है. फिर भी the peasants came like swamps of life. Very beautiful scene he has created. As soon as this news spread among the villages, जैसे यह खबर पूरे गांव वालों के पास पहुंची, the peasants came like swarm of flies. मक्खियों की झुंड की तरह लोग यह बात सुन करके उसकी माँ का हाल चाल पूछने आएगी, आखिर तुम्हें क्या हुआ. ये बहुत टेंडर, बहुत कोमल भावना है कि गांव में किस तरह से एक जुटता प्रेम, आपसी सौहार्द का संबंध रहता है कि लोग किसी के दुख की एक छोटी सी बात सुनकर भी इतने बड़े झुंड में उसकी मदद के लिए उसके घर पे पहुंचे. बहुत करुणादायी दृश्य यह है कि जहां इसमें पेजेंट्स जो छोटे छोटे किसान है उसके घर पर आए. And burst the name of God 100 times to paralyze the evil one and to detoxify the effect of that scorpion sting. They keep on chanting the names of gods to paralyze the evil one. उसकी माँ के पैर से उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी लोग एक करुणा भाव से भगवान का नाम भज रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं. उनके बिलीफ को आप देखिए. जब भी कष्ट आता है तो जो हमारे गांव के भोले भाले लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका विश्वास उस परम सत्ता ईश्वर पे है कि उसको पुकारना शुरू कर दे, उस करुणा निधन को पुकारना शुरू करते हैं. With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud bucket walls, they searched for him. और उनकी एक बिलीफ है कि इसको जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतनी जल्दी उसका विष कम हो गया. And they keep on searching by carrying the lanterns and the lamps into their hands. अपने हाथ में लैंप और कैंडल्स, लाइट्स, सब कुछ जो भी उनके पास मसाल साधन हो सकता था उसको लेकर के उसको ढूंढने जा रहे हैं. Whilst they searched for him, he was not found. कई बार तो उनको लगता था कि उनकी their own shadow they used to find that as scorpion, but it was not there. कई बार उनको लगता है उनकी जो खुद की परछाई को वो स्कॉर्पियन रात के अंधेरे में समझते थे, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, कि उनका एक बिलीफ है कि जितनी जल्दी हम स्कॉर्पियन को पकड़ के मार लेंगे उतनी जल्दी उसके विष का प्रभाव कम होगा, और जितनी दूर वो हमसे जाता रहेगा उसका विष का प्रभाव जो काटने वाला व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके शरीर में वह फैलता रहेगा. He was not found. They clicked their tongues. वो अपनी जीभ निराशा में चटकारते रहे. With every moment that the scorpion made his poison moved in the mother's blood, they said. And it's a kind of a very good techniques the poet has used here, that is called dramatic irony. कि जब आप कोई बात अपनी बात कहते कहते, basically the protagonist is poet himself into this poem, जिसमें बोलने वाले हैं वो खुद पोइट है, फर्स्ट पर्सन में उसलिए कह रहे हैं कि आई रिमेंबर, ही हैज यूज्ड फर्स्ट पर्सन है, लेकिन बीच में वो किसी और के मन की भी बात कहलवा रहे हैं कैरेक्टर्स के माध्यम से. एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड द ड्रामेटिक आयरनी.
उनसे कहला रहे हैं कि लोगों के मन में ऐसा भरोसा है, विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, कि जितनी दूर स्कॉर्पियन काटने के बाद जाता है उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से वो दौड़ता, जितनी दूर दौड़ता, उतनी ही तेजी से काटने वाले व्यक्ति के शरीर में जहर का फैलाव होता है। ये बात गांव के लोगों के मानस पटल पे है, उनके परंपरा में है जो ये मानते हैं। और देखिए कितने खूबसूरत वर्णन यहाँ पर टेक्निक्स ड्रामेटिक आयरनी का यहाँ पर लेखक ने किया है, नसीम जैकिल ने किया है। मे ही सिट स्टिल they said, may the sins of your previous birth he burned away tonight, they said. बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारे भरोसे हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसलिए कह रहे हो सकता है इस बीच जब उनको न तो स्कॉर्पियन मिला, न उसका दर्द ठीक हो रहा है उस माँ का, उनकी माँ का, फिर वो एक भरोसा दिला रहे हैं उसको, दे आर ट्राइंग टू कंसोल हर, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, हो सकता है आज की रात तुम्हारे पूर्व जन्म के जो भी कष्ट हैं सारे हर ले गए हों, हो सकता है कष्ट भी कुछ खुशियां लेकर के आएंगे तुम्हारे सारे पुराने पापों को नष्ट करके। बिकॉज देर इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द पीपल दैट देर इज टू लाइफ्स, द प्रेजेंट लाइफ, द प्रीवियस लाइफ एंड द नेक्स्ट लाइफ, एंड ऑल दीज लाइफ्स आर डिसाइडेड बाय द कार्मिक अकाउंट दैट यू डू इन द प्रेजेंट लाइफ, कि जो भी कर्म हम आज करते हैं उसी के आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है। तो कहने शायद हमने अपने पहले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि जिसका दंड हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो हो सकता है कई मामलों में उसको अच्छा भी मान रहे, हो सकता है आगे आने वाले समय में आप कष्ट मुक्त हों और एक बेहतरीन आपको पुनर्जन्म मिले, आप एक बेहतरीन जीवन जिए। बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड, मे योर सफरिंग डिक्रीज दिस मॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, और ये सारे जितने भी अपशकुन हैं, जितने भी कष्ट हैं, यू मे गेट yourself liberated and freed from all these sufferings in your next life. अगले जन्म में जब आप इस धरती पर आए तो हो सकता है आप इन सारे कष्टों से मुक्त हों। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. और जितना कष्ट, the more you are suffering from this pain of scorpion sting, all this pain must be diminishing your sins of the previous life. They said, may the poison purify flesh, and maybe all these whatever happened that happened for the good. गीता जिस तरह से कहते कि जो हो रहा है होने दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम तो कर्म करते रहो, कर्म का फल मिलता रहेगा। हो सकता है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा हो। मे द पॉइजन प्यूरिफाई फ्लैश, हो सकता है इससे तुम्हारा जो हाड़मान से शरीर है इसकी गंदगी दूर हो जाए, ये उनका भरोसा है। क्योंकि कई बार हम लोग कंसोल खुद ही को करें, सांत्वना भी दे रहे हैं, पहले तो उसकी औषधि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन औषधि नहीं मिल रही है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि खुद को ही संतुष्टि देने का, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा, ये एक भरोसा, ये मान्यताएं गांव ग्रामीण परिवेश में होती है। They sat around on the floor with my mother in the center. जब कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा, ना दर्द कम हुआ, ना स्कॉर्पियन मिला, उसकी माँ को बीच में बैठे सारे लोग उसकी चारों तरफ एक आशा की नजर से, कुछ हताशा में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद से तो जो चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ, मंत्र तंत्र भी कर दिए हैं, फिर भी उनको एक उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। ऑन द फ्लोर विद माय मदर इन द सेंटर, माँ बीच में बैठी, सब लोग उस पर एक सहानुभूति का भाव दिखा रहे हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सब लोगों के चेहरे पर एक समझ की शांति जैसी है, एक उम्मीद भी है तो निराशा का भाव भी है। दे आर सिटिंग देयर इन अ डिलेमा बिकॉज नथिंग इज इन देयर कंट्रोल। Whatever they could have done, they tried their best, but finally they could not have been able to find out any solution. More candles, more lanterns, the peace of understanding on his face, more candles, more lanterns, more neighbors, more insect and endless train. इतने सारे लोग आए हैं अब उस दुख को कम करने के लिए। More candles, more lanterns, more neighbors, ज़्यादातर लोग अपने हाथों में कैंडल्स लेके आए हैं, मोमबत्तियाँ लेके आए हैं, लालटेन लेके आए हैं। जितने लोग आए हैं उतने कैंडल्स हैं, उतने लालटेन्स हैं, और उनके साथ साथ क्योंकि जहाँ उजाला होता रात को उतने ही कीड़े मकोड़े वहाँ पर भिन भिनाते उनकी चारों तरफ बैठे हुए हैं। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और रात भर चलने वाली, इट इज नेवर एंडिंग रेन, इट स्टिल कंटिन्यूइंग, और रात भर चलने वाली बारिश अभी भी हो रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट,
और वहां पर जो बिछोना बिछा हुआ, शी इज ट्राइंग टू क्रॉल, शी इज ट्राइंग टू ट्विस्ट, अपनी करवटें बदल रही है उस दर्द से कराहते हुए, और लोग भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक सहानुभूति भाव से उसकी तरफ देख रहे हैं। माई फादर सेप्टिक रेस्टलेस ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो कहते मेरे पिता जो इस तरह के किसी भी टोटकी को नहीं मानते हैं, किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, बड़े शंकावादी हैं, सेप्टिक हैं, बड़े रेस्टलेस हैं, तर्कवादी हैं, जो हर कारण के पीछे, हर घटना के पीछे कारण मानते हैं, उनको भी आज कोई कारण नहीं सुझा रहा, कोई औषधि उनके पास नहीं है, और वो भी एक बिल्कुल निराशा में व्यक्ति हर कोई भी टोटका शुरू कर देता, और उन्होंने भी जिसने जो कहा उस तरह की दवाई उसकी माँ को बना करके खिला रहे हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, जो भी कर्स है, जो भी अभिशाप है, जो भी वरदान है, दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी छोटी और बड़ी समझ उनके पास है। पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हैबिट, उन्होंने उसको पाउडर भी बना करके दिया, मिक्सचर बना करके दिया, हर्ब जड़ी बूटी भी दी, हाइब्रिड भी दी, दोनों को मिला करके भी दिया, शंकर बना करके भी दिया। He even poured a little paraffin upon the bitten tooth and put a match to it. यहाँ तक कि उन्होंने उसकी माँ के उस अंगूठे में जिसको बिच्छू ने काट लिया था, जहाँ पर डंक मारा था, वहां पर कुछ मिट्टी का तेल भी डाले उसको 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 दिया सलाई से जला भी रहे हैं, आग लगा रहे हैं उस पर। इस प्रभाव को कम करने के लिए मान्यताओं के हिसाब से अगर हम उस स्थान पर मिट्टी तेल डाल के जला रहे हैं तो हो सकता है कि उस विष का प्रभाव कम हो जाए। Put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. And very hopelessly, the poet sees the light is burning, the flame feeding on her mother's toe. उसकी माँ के पैर पर वही अग्नि प्रज्वलित हो रही है। I watched the holy man perform his try to tame the poison with an incantation after 20 hours cloud sing. और जो पुजारी थे, जो तंत्र मंत्र जानने वाले लोग थे, वो भी इनकेंटेशन कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जादू टोना कर रहे थे उस विष को कम करने के लिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार आफ्टर 24 आवर्स क्लॉट स्टिंग, आखिरकार 24 घंटे की कसमस के बाद उस जहर का प्रभाव कम हुआ, और जैसे उसकी माँ को उस जहर के प्रभाव कम होने से उसको होश आया। अभी तक तो आपने कहानी सुनी है, जो कविता है वो लास्ट 2 पंक्तियों में है, माई मदर ओनली सेड। और जब उसकी माँ, वो कवि कह रहा है कि अभी तक तो जो 24 आवर्स में जो कुछ हुआ वो सब कहानी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही माँ को होश आया 24 घंटे बाद, तो माँ ने क्या कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। मैं तेरा शुक्रिया किन शब्दों में करूं कि तूने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा है, ये कष्ट तूने उनके हिस्से का कष्ट मुझे दिया। So you can see how beautifully he finishes the poem, that a mother is suffering for more than 24 hours. All the people of the villages are trying to help her in their best way, but they are unable to do anything. And finally, she comes to, when she comes to his consciousness in her sense, and she first thanks God she thanks to God for keeping her children safe. एक माँ का हृदय देखिए ना, इतना सब कष्ट भूल करके जैसे हो उसने पहले ही कहा कि भगवान तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे बच्चों को ये कष्ट नहीं दिया और इनके हिस्से का कष्ट नहीं। आखिर माँ तो माँ होती, इसलिए कहते हैं दुनिया में जो सबसे बड़ा रिश्ता हो माँ का है। माँ की ममता से बड़े छाँव पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है, माँ के आंचल से बड़ा सुख पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। सो हियर वी सी द पोएट ट्राइज टू सी a battle between the darkness and the light, the tradition and the modernism, the good and the evil, the faith and the rationality. Ultimately, he says, nobody wins but the mother. माँ जीतती है, उसकी भावना अपने बच्चों के लिए जो थी वो जीतती है इस कविता में। आखिर इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक भारतीय ग्रामीण समाज की एक बेहतरीन व्यवस्थाओं का, लोगों के मनोभावों का एक सुंदर चित्रण किया है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं, जो भी फीडबैक है, ज़रूर देते रहें, ताकि हम उन सुधारों को आने वाले वीडियोज़ में उन सुधारों पर अमल करेंगे और बेहतरीन वीडियोज़ लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।